Good evening, sir. In the Evening, last sir. class, we have discussion over the local time is standard time, time zone, latitude, longitude. I hope you understand the topic. And I have given one question also. Should India be divided into more than one time zone? What is your take? And some of you have sent your answers also. I have gone through those answers. So in nutshell, you all have this idea that this was a long-lasting demand from eastern part of India. But on the very basis of certain observation, it was discarded way back in 2000, 2002 के आसपास इसको डिस्कार्ड किया गया था. But we also have seen some chaotic situation on the very basis it was discarded, but certainly there is some valid point that India should be divided into more than one time zone. So there are certain arguments on internet. It is available that if we divide India into more than one time zone, it amounts to be one more division. We have already divided India into many ways and means. तो इस तरह के आर्ग्यूमेंट भी हैं. अब इनकी वैलिडिटी क्या है कि बच्चे इंडिया क्या एक और डिवीजन अगर टाइम के आधार पे किया जाए तो इज इट गोइंग टू हैव सम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस? आंसर इज नो. Because despite of all these division, we consider it as a diversity, as a heritage of India. Fine. So one more division is not going to create any chaotic situation. And whatever the changes that is required to acclimatize with this change, with this division has to be done. If a country, world country has been divided into more than one time zone, so why should not India? If it is done in European Union, if it is done in other countries that they are working efficiently in more than one time zone, so why should not it will be done in India? Okay. If the outcome is larger than life, that means if we are going to have some positive thing which is very much required. For example, if we divide eastern part of India as well as western part of India into two time zones, certainly eastern part of India will get more daylight saving time. And in that case, we are going to save our energy. And if we are saving our energy, certainly it will boost our economy. Because two ways is there. One, कि हमारा जो import होगा fossil fuel का वो कम होगा, और दूसरा वो ये कि हमारा carbon emission कम होगा. And when we have a lower carbon emission, certainly it will help us in reducing our carbon footprint in order to contain the global warming. So that is whatever which we can do right now to reduce the carbon emission, it has to be done, whether it is dividing India into more than one time zone or anything else. Okay. Further, if we divide India into more than one time zone, eastern part of India will get more benefit as we can do women empowerment. Because when you consider the remote villages of Nagaland, Manipur, where the darkness prevail much early by 4:30, you will find sunset is there. So consider those office-going women who just start their home journey after darkness. So if there will be 1 hour more for them, certainly their means security will be what enhanced, and we will empower them. They can have leisure time with their family, isn't it? So some positive things are there, but yes, simultaneously we have certain negative things, like there will be mismatch of timetable of means a national exam. Suppose that UPSC, so you have to conduct this exam on same time, isn't it? And we can manage it. If it is managed anywhere else in the world, so why not it should be managed in India? If we are going to empower our women, secure our women, if it boost our circadian rhythm, biological clock, if it is helping us to have leisure time, and above all, if anything which is going to reduce the carbon emission right now is going to be very helpful, and that's why India should be divided into more than one time zone. Or there must be some kind of provision in which we can have
1 extra hour shift or 30 minutes shift towards east so that they can manage their daylight saving time. So this is the argument in nutshell, and those who have gone through the negatives more has to be means introspected and then rewrite it. Okay, and those who have a balanced approach is going to be the right one. So I have gone through your answers, and I am very happy that you people have gone through the internet, and some of you have written very well. So that's good news for all of us. So have you gone through the mains exam? अभी जो मेंस हुआ है उसके पेपर आपने देखे, पेपर स्पेशली पेपर 1 और पेपर 3 जिसमें मेरा पार्ट है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, एनीवन हु इज ओल्ड स्टूडेंट जिसने जीएस में मेरे साथ तैयारी की हो, कोई है यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. Are you getting something in your mains examination from the notes, class notes only? हाँ sir. कितने सवाल मिले बेटे पेपर 1 में? 130 मार्क्स था इस बार पेपर 1. हाँ. So there were direct questions. So if you are preparing geography as an optional as well as Ms. GS, so obviously optional geography will help you your preparation, boost your preparation well. ठीक है, अभी तो शुरुआत है, but let's see which way cat will jump. But every year almost 120 marks in geography and 30 marks in environment and ecology and 30 marks of disaster management. This is what in GS, which is contributed from the geography optional. So if you are preparing it, you will get it done properly. Okay. So let's begin today's class. आज के एजेंडे में अभी जनरल ज्योग्राफी के पार्ट ही चल रहे हैं, तो आज हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल देख लेते हैं बच्चे, और फिर इंटीरियर ऑफ अर्थ की ओर चलेंगे. अगेन जियोलॉजिकल टाइम स्केल के लिए मेरे पास एक नोट्स है, उसे मैं शेयर कर देता हूँ. लेट मी शेयर इट. तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल it is to understand the timetable. So is board visible? No, sir. Okay, No, fine. sir. Let me share this. Now I think it is visible. Yes, sir. दिखा. Yes, sir. Okay, fine. So geological बंद कर दिया क्या मैंने? विजिबल है सर. चल रहा है अभी, बोर्ड चल रहा है? जी, पर कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा. हाँ, हो रहा है. अभी होगा मूवमेंट. मूवमेंट करेंगे तब तो आ जाओ. सो जियोलॉजिकल टाइम स्केल, तो क्या किया गया है बच्चे, अर्थ की हिस्ट्री को डिफरेंट पार्ट्स में बांट दिया गया है, और जिसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो बताते हैं कब अर्थ पैदा हुई, यानी ओरिजिन ऑफ अर्थ, फिर ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर, ओरिजिन ऑफ लाइफ, और फिर किस तरह से ये लाइफ डाइवर्सिफाई हुई, और उसको जियोलॉजिकल टाइम स्केल के नाम से आपके सामने रखा जाता है. इसमें इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे, पर्टिकुलर इयॉन्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर, उनके जो क्लासिफिकेशन है वो इम्पोर्टेंट है, जो कभी कभी आपको पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, मेंस में पूछे नहीं जाते, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उसके जो टाइम स्केल है उसका डिवीजन होना आपके दिमाग में बहुत जरूरी है. जैसे मान लीजिए माउंटेन पढ़ेंगे तो माउंटेन की 4 ओरोजेनी हुई हैं. देयर वेर 4 ओरोजेनी ऑन द अर्थ सरफेस.
So once you have the idea of the time scale, it will be better to understand, assimilate the information. For that very purpose, it is what taught in the geography optional as well as GS also. तो GS में तो मैं छोड़ ही देता हूँ, but ठीक है, ऑप्शनल में इसको कर लेते हैं. So geological time scale is a system of chronological measurement that describe the timing and relationship between events that have occurred throughout the earth history. तो जो भी इवेंट्स हुए हैं, जब जब हुए हैं, उनके टाइमिंग क्या है, उसको जियोलॉजिकल टाइम स्केल से दर्शाया गया. अब ये बनाया कैसे गया बच्चे? जियोलॉजिकल टाइम स्केल को बनाने के लिए या एज एस्टिमेशन के लिए हम रेडियो एक्टिव डेटिंग करते हैं, स्पेशली यूरेनियम डेटिंग करते हैं. वी गो फॉर यूरेनियम डेटिंग. कार्बन डेटिंग के बस की बाहर की बात है बच्चे, है ना. कार्बन डेटिंग तो तब करेंगे जब कार्बन होगा. सो हियर इट इज व्हाट यूरेनियम डेटिंग which is done to estimate the age of the rock. Uranium dating. Uranium dating. So uranium dating is done, and that is what collectively called as radioactive dating help determine the absolute division in the time scale. What is the application? Illustrate the vast diversity of life that has present on Earth over time. Summarize how scientists study Earth past environment and diverse life form by examining different type of fossils. अच्छा, जब fossils की study आती है बच्चे, then we have radiocarbon dating. Radiocarbon dating. कार्बन डेटिंग, क्योंकि कार्बन, रेडियोएक्टिव कार्बन गिरा चुका है, तो रेडियोकार्बन डेटिंग से भी आप नए फॉसिल्स को देख सकते हैं. लेकिन जो फॉसिल्स हैं, प्रिमिटिव फॉसिल्स, उसके लिए आप यूरेनियम डेटिंग ही करते हैं, रॉक के एज की एस्टिमेशन करते हैं. एक्सप्लेन हाउ अर्थ हिस्ट्री हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय कैटास्ट्रॉफ्स दैट हैव अफेक्टेड द कंडीशन ऑफ अर्थ एंड द डाइवर्सिटी ऑफ इट्स लाइफ. ये सिनॉप्सिस है जो अंत में आपके रिवीजन के लिए है. ठीक है, इसमें आप देखें, इयॉन जो सबसे बड़ा है, इयॉन में हमारे पास है प्री कैम्ब्रियन एंड फेनेरोजोइक. प्री कैम्ब्रियन, दिस इज प्री कैम्ब्रियन. Precambrian eon and then Phanerozoic eon. So these are the eon. और Precambrian में हमारे पास एरा हैं, हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक. इनको प्रीकैम्ब्रियन, इन तीनों को प्रीकैम्ब्रियन में ही पढ़ा जाता है. ठीक है, हेडियन सबसे बड़ा समय हेडियन का गया है. 88% टाइम आपका अर्थ के हिस्ट्री का प्रीकैम्ब्रियन एरा है. उसके बाद फेनेरोजोइक इयॉन है, या इसको एरा भी कभी कभी कह लेते हैं. वी कॉल इट एरा ऑल्सो, बट मोस्टली इट इज व्हाट इयॉन. इयॉन इज द लार्जेस्ट, व्हाट यू कैन से, टाइम पीरियड. इयॉन इज द लार्जेस्ट टाइम पीरियड, द लार्जेस्ट. और इयॉन के बाद आते हैं एरा. एरा को डिवाइड किया गया है पीरियड में. ठीक है बच्चे, पीरियड. सो दिस इज हाउ इट हैज बीन डिवाइडेड. सो इयॉन, प्रीकैम्ब्रियन और फेनेरोजोइक. और उसके बाद फेनेरोजोइक, प्रीकैम्ब्रियन में देखिए हेडियन है, आर्कियन है, प्रोटेरोजोइक है. हेडियन जब अर्थ बनी थी 4.6 बिलियन ईयर, 4.6 बिलियन ईयर पहले से शुरू करके, और जब तक पहली लाइफ आती है तब तक, यानी आर्कियन और प्रोटेरोजोइक 3.5 बिलियन ईयर तक. ये जो समय है वो हेडियन का है, फिर आर्कियन, फिर प्रोटेरोजोइक. डिटेल में पढ़ेंगे. फिर फेनेरोजोइक इयॉन में 3 एरा है बच्चे. सबसे पहले पैलियोजोइक, फिर मिसोजोइक, और अभी जो प्रेजेंट एरा है दैट इज सिनो. ठीक है, पैलियोजोइक में पीरियड्स बटे हुए हैं, जिनमें पीरियड 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पीरियड हैं बच्चे. कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन. इनकी टाइमिंग लिखी गई है, अभी उस पर मैं आता हूँ. फिर उसके बाद मेसोजोइक एरा के पीरियड हैं ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस. ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस. एंड देन सिनोजोइक एरा, जिसमें टर्शियरी और क्वार्टरनरी पीरियड्स हैं बच्चे. ठीक है, तो आप ध्यान देंगे, जुरासिक, जुरा माउंटेन से फॉसिल्स मिले थे, ये वही समय है जब डायनासोर खूब सारे हुआ करते थे. क्रिटेशियस वो समय है बच्चे जब एरिजोना में मीटियोराइटिक फॉल हुआ था और मास एक्सटिंक्शन हुआ था, है ना.
ट्राइएसिक, पर्मियन, कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस वो समय है जिस समय खूब सारे पृथ्वी पे जिम्नोस्पर्म ढेर सारे हुए थे, है ना, और एक मास एक्सटिंक्शन यहाँ भी हुआ था। देन डिवोनियन, सिलूरियन। आप ध्यान देंगे कि मछलियों की उत्पत्ति सबसे पहले मछलियां हुई हैं, फिर एवीज हुए हैं बच्चे, बर्ड्स हुए हैं, है ना, मछलियां हुई हैं, फिर रेप्टाइल्स हुए हैं, फिर बर्ड्स, और फिर जाके मैमल हुए हैं। तो आपका ये जो समय डिवोनियन और सिलूरियन का है, यहाँ मछलियां जो हैं इवॉल्व होती इन वर्टिब्रेट से, जो आपके कैम्ब्रियन और ओर्डोविशियन में होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लाइफ पहली उत्पन्न होती है बच्चे, दैट इज व्हाट प्रोटेरोजोइक एरा, almost 3.5 billion years ago. So let's find it out. This is the synopsis जिसके हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। प्री कैम्ब्रियन, जो कि 88% अर्थ की हिस्ट्री को बताता है। 88% of the history of Earth, geological history, is under Precambrian, which can be divided into Hadean, Archean, and Proterozoic. And then what happened? Paleozoic. Try to see this Paleozoic, which is the era of Phanerozoic, Precambrian, and Phanerozoic. Okay, so Proterozoic, ancient life 544 million year ago and 300 million ago. Paleozoic era में लगभग 3.5 बिलियन ईयर जो है, यहाँ पे पहली लाइफ उत्पन्न होती है, जिसको आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। आप आर्किया, फर्स्ट लाइफ वाज ओरिजिनेटेड हियर। देन व्हाट हैपेंड? मेसोजोइक, मिडिल लाइफ 245 मिलियन से लेके 180 मिलियन तक के बीच में बच्चे। इसमें क्या होता है? आर्किया, आर्किया से यू बैक्टीरिया बनते हैं, यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया से बनते हैं साइनोबैक्टीरिया, है ना, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करना शुरू करता है। फिर इसके बाद यूकैरियोट्स आ जाते हैं बच्चे। यूकैरियोट्स में प्रोटोजोअन्स होते हैं, यूकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स के बाद फिर सिंगल सेल यूकैरियोट, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। और जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनने लगते हैं तो उससे प्लांट्स और एनिमल और फंजाई तीनों बन जाते हैं, और वहां से डाइवर्सिटी बढ़ने लगती है। सो दिस इज व्हाट द वे दैट इवोल्यूशन वाज actually happened. Okay, so Paleozoic, Mesozoic, and then there is the new era, recent life, which is what Cenozoic. Cenozoic started from 65 million years ago, continued through till date. Today we are in the Holocene epoch of the Quaternary period of the Cenozoic era. So this is what epoch. So once we have eon, then we have era, then we have period, and period is further divided into epoch. Fine. So this is how the terminologies are there. So Cenozoic era, which is the recent one, and it is characterized by the modern life in which we have seen the diversity of life. We can see the metazoans. Metazoan का मतलब होता है multicellular organism. Metazoans. Okay, we have seen the diversification up to mammals, most advanced plant like angiosperms, and the most advanced animal is what the human. This is what the era of human and angiosperm. Okay, that's why Cenozoic, which is the recent or new era. Okay, Cenozoic. Let's come to the Precambrian, started 700 million year ago before present. Earth changed from gaseous to liquid state. Try to see, this is the time Earth was originated. In which state? It was part of this gaseous nebula. So initially it was a gas. So gaseous nebula undergoing fusion reaction, and there is formation of heavy elements, and this heavy element formation lead to liquid state as well as solidification. So this is what done in Precambrian. Soft-bodied invertebrate animal evolved in warm sea. So Precambrian का जो ये समय चल रहा है बच्चे, आप ध्यान से देखो. So Precambrian का Hadean में there is a earth which is not at all
meant for living, but during Archean अर्थ में ढेर सारी बारिश हो रही होती है, एक एटमॉस्फेयर भी अर्थ को मिल चुका है, और अर्थ पे पहली लाइफ आर्कियन में उत्पन्न होती है 3.5 बिलियन ईयर एगो। तो फर्स्ट लाइफ वाज देयर। दिस इज व्हाट प्री कैम्ब्रियन एरा। अब प्री कैम्ब्रियन बीतने के बाद पैलियोजोइक आता है बच्चे, एंड प्री कैम्ब्रियन पीरियड इज द फर्स्ट पीरियड ऑफ द पैलियोजोइक एरा। Cambrian is the first period of Paleozoic era, and the explosion of life in the ocean began during this era. Most of the continents were covered in warm, shallow seas. Invertebrates were dominant. Fish emerged during this time. Paleozoic जो ancient fish थी वो शुरू हो गई थी बच्चे। Fish led to the arrival of amphibians, and the end of Paleozoic era called the age of amphibians. पैलियोजोइक खत्म होते होते एज ऑफ एम्फीबियंस आ चुका है। सो ट्राई टू सी दिस इज पैलियोजोइक which is what ancient life. Try to see Paleozoic. Here it is Cambrian, Ordovician, Silurian, Devonian, Carboniferous and Permian. Silurian and Devonian में fishes आ जाती हैं बच्चे। So starting from Proterozoic, protozoans, single cell यूकैरियोट से शुरुआत होती है। प्रोटोजोआ जिसको आप अमीबा, पैरामीशियम, एंटमीबा, हिस्टोलिटिका, इन सब के उदाहरण आपने पढ़े होंगे। प्लाज्मोडियम, वाइवेक्स, ये सारे प्रोटोजोन्स हैं बच्चे। प्रोटोजोन से मेटाजोन बनते हैं, और मेटाजोन के बनने की प्रक्रिया में पहले इनवर्टिब्रेट बनते हैं, इनवर्टिब्रेट, और फिर बाद में वर्टिब्रेट बनते हैं। तो इनवर्टिब्रेट वे होते हैं जिनके नोटोकार्ड नहीं पाई जाती, रीढ़ की हड्डी जो होती है नोटोकार्ड वो नहीं पाई जाती, और वर्टिब्रेट वे होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो फर्स्ट वर्टिब्रेट वाज फिश। फिश इवॉल्व टू एम्फीबियन। एम्फीबियन वो होते हैं बच्चे जो पानी में और अर्थ दोनों पे रह सकते हैं। तो लाइफ पहले ओरिजिनेट हुई थी पानी में बच्चे, अब यहाँ से अर्थ की तरफ जाना था, तो ऐसे लोग चाहिए थे जो यहाँ भी रहें और यहाँ भी रहें, क्योंकि अचानक ट्रांजिशन नहीं हो सकता था। तो एम्फीबियंस बने बच्चे। तो एम्फीबियन बनते हैं आपके कार्बोनिफेरस के आसपास, और एम्फीबियन से बनते हैं रेप्टाइल्स, है ना। एम्फीबियन से बनते हैं रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स वो होते हैं जिनमें आप देखते हो सरीसृप, जिसमें यू विल फाइंड डायनासोर्स, यू विल फाइंड एलिगेटर्स। रेप्टाइल्स में बहुत सारे आपके सांप भी रेप्टाइल्स में आते हैं। इनका इवोल्यूशन होता है बच्चे। और रेप्टाइल्स के बाद इवोल्यूशन होता है बर्ड्स का। रेप्टाइल से बनते हैं बर्ड्स, और बर्ड्स और रेप्टाइल से ही एक कॉमन इवोल्यूशन मैमल्स की तरफ जाता है, और फिर जाकर के मैमल्स का इवोल्यूशन होता है। सो दिस इज व्हाट द स्टोरी ऑफ पैलियोजोइक। सो पैलियोजोइक तक एम्फीबियन आ जाते हैं बच्चे, एम्फीबियन। दैट्स व्हाई दिस पैलियोजोइक इज कॉल्ड एज एरा ऑफ एम्फीबियन। यही बात यहाँ लिखी गई थी, ठीक है। सो पैलियोजोइक इनवर्टिब्रेट्स वेर डोमिनेंट। सबसे पहले आप इनवर्टिब्रेट देखोगे पैलियोजोइक एरा में। फिर मछलियां बनती हैं, मछलियां एम्फीबियंस को बनाती हैं भाई। फिश बिलोंग्स टू वाटर, है ना। एंड देन उसके बाद पानी से बाहर आने वाला कोई चाहिए, लेकिन अचानक से पानी से बाहर तो कोई जा नहीं सकता। तो ऐसा कोई जो पानी में भी रह ले और बाहर भी रह ले। तो दो तरह की लाइफ जो लीड कर सके उन वैसे एनिमल का, और प्लांट्स का भी वैसे प्लांट्स का इवोल्यूशन होता है। जैसे इसी समय ब्रायोफाइट्स इवॉल्व हो चुके थे बच्चे। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियन ऑफ प्लांट, ठीक है। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, इज इट ओके? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ये ब्रायोफाइट है। तो इस समय एम्फीबियन और ब्रायोफाइट दोनों आ गए थे, ठीक है। अब आगे क्या है बच्चे? द एंड ऑफ पैलियोजोइक इज कॉल्ड एज एज ऑफ एम्फीबियन। अर्ली लैंड प्लांट इंक्लूडिंग मॉसेस, फर्न एंड कोन बियरिंग प्लांट्स वर इवॉल्व। मॉसेस को बच्चे ब्रायोफाइट कहते हैं, फर्न को टेरिडोफाइट कहते हैं, और इनिशियल जिम्नोस्पर्म को कोन बियरिंग प्लांट्स कहते हैं। तो इनका भी मतलब उद्भव हो चुका था। द
The early coal forming forests were also formed during this time. अब कार्बोनिफेरस आने वाला है ना, तो ये कोल फॉर्मिंग जो जंगल थे, ज्यादातर जंगल किसके थे बच्चों? जिम्नोस्पर्म के थे। ये अब धीरे धीरे इवॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। जिम्नोस्पर्म, जंगल ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट। अब आता है बच्चे इसके बाद पैलियोजोइक एरा। ये एंशियंट है। ये पैलियोजोइक एरा जो है आपका मेडिवल समझ लें। तो मच ऑफ द लाइमस्टोन क्वेरीड फॉर बिल्डिंग एंड इंडस्ट्रियल purposes as well as the coal deposit of Western Europe and the Eastern United States were formed during the Paleozoic. तो यहाँ पे जो कोल रिजर्व हैं आप देखोगे, कोल ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका आर द बेस्ट क्वालिटी कोल। नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे आपको एंथ्रासाइट कोल डिपॉजिट मिलेंगे। कैसे कोल बच्चे? एंथ्रासाइट। अब एंथ्रासाइट कोल डिपॉजिट यहाँ इसलिए मिलते हैं क्योंकि ये सबसे पुराने कोल डिपॉजिट है। ओल्डेस्ट कोल ऑफ द वर्ल्ड, ओल्डेस्ट कोल। So oldest coal deposit of the world is actually present in USA, North America, including Canada, as well as Western Europe and Northern Europe. So you will find this Paleozoic coal deposit. The Cambrian beginning opened with the breakup of world continent Rodinia and closed with the formation of Pangea. तो कैम्ब्रियन में रोडीनिया सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट था वो टूटा और पेंजिया के रूप में बदल गया। एज द अर्थ कॉन्टिनेंट केम टुगेदर वंस अगेन। रोडीनिया वाज द इनिशियल कॉन्टिनेंट ना, रोडीनिया। जैसे पेंजिया टूटा, आप इसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में आपको पढ़ाया जाता है, रोडीनिया के टूटने के बाद ड्रिफ्ट हुआ और ड्रिफ्ट के बाद फिर पेंजिया एक साथ हो गया। तो पेंजिया टूट रहा है, पेंजिया टूट के लॉरेशिया और गोंडवाना में बदल चुका है। इनके अलग अलग पार्ट्स टूट के अलग हो चुके हैं, हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में देखेंगे। और कल को होगा एक और सुपर कॉन्टिनेंट इनके एग्रीगेशन से बन जाएगा जो चारों तरफ से ओशन से घिरा होगा। सो दिस इज अ सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल विच इज गोइंग। तो रोडीनिया ब्रोकन इनटू पेंजिया, पेंजिया इनटू लॉरेशिया एंड गोंडवाना, Laurasia broken into North America and Eurasia, while Gondwana broken into South America, Africa, India, Australia, and Antarctica. And there is a drifting continuously there. And once they get drifted and the new ocean get formed, so obviously the entire land mass will be together and there will be a future continent. And this future continent further broken under the influence of इंडोजेनिक फोर्स और फिर से नए ओशन बनेंगे कुछ ओशन बिगड़ने के बाद। सो हम लोग इसको आगे देखेंगे, बट दिस इज द स्टोरी विच इज गोइंग। ओके, तो रोडीनिया टूटना शुरू हो गया था अर्ली कैम्ब्रियन में, और कैम्ब्रियन बीतते बीतते पेंजिया बन चुका था। दिस इवेंट इज थॉट टू हैव कॉज्ड द क्लाइमेट चेंज दैट लेड टू द मास एक्सटिंक्शन इवेंट। तो यहाँ पे मास एक्सटिंक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। इसी समय अपलेशियन माउंटेन बने थे। कैलिडोनियन ओरोजेनी हो रही है बच्चे, कैलिडोनियन ओरोजेनी आपको पढ़ाया जाएगा। कैलिडोनियन ओरोजेनी, साइलूरियन और डिवोनियन पीरियड। साइलूरियन और डिवोनियन, ये जो समय आप देख रहे हैं साइलूरियन, दिस इज व्हाट डिवोनियन। इसी समय कैलिडोनियन ओरोजेनी हो रही है। चल क्या रहा है अभी? कैम्ब्रियन के आगे का समय चल रहा है। अपलेशियन बना, सो मेनी माउंटेन्स वेर फॉर्म्ड। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सो इट वाज नॉट ओनली अपलेशियन, इट वाज स्कैंडिनेवियन माउंटेन, स्कैंडिनेवियन माउंटेन, ये भी इसी समय बनते हैं बच्चे, लगभग इसी समय बनते हैं। भारत में इस समय विंध्यन बन रहा होता है बच्चे, विंध्यन, महादेव हिल्स, सतपुड़ा, सतपुड़ा, ईस्टर्न घाट्स, इनका निर्माण हो रहा होता है। अच्छा, कुछ जोग्राफर अरावली का भी निर्माण कैलिडोनियन में मानते हैं। और आप अगर किताबें पढ़ रहे होंगे सविंदर सिंह की, तो उसमें अरावली को भी कैलिडोनियन माना गया है। लेकिन अब की स्टडीज बताती हैं कि कैलिडोनियन, अरावली इज व्हाट ओल्डर माउंटेन देन दिस
कैलिडोनियन सीरीज। अरावली का जन्म हो चुका था प्री कैम्ब्रियन ओरोजेनी में, और आसपास आर्कियन और प्रोटीरोजोइक के आसपास हुआ था। तो अरावली इज ऑफ प्री कैम्ब्रियन ओरोजेनी, नाउ इट इज प्रूव्ड। लेकिन अभी भी किताबों में गलत लिखा हुआ है। तो अगर आप सविंद्र सिंह सर की किताब पढ़ रहे हैं और ओरोजेनी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप अरावली को स्पेशली देखिएगा। अरावली को उन्होंने लिख दिया है कि इट इज कैलिडोनियन ओरोजेनी, जो कि टेक्निकली गलत है। तो याद रखिएगा, इट इज रॉन्ग। Aravali is Precambrian orogeny. This is now proved, and the timing is almost 2 billion year from today. So 2 billion year is going to fall within Archean and Proterozoic, isn't it? So do remember, it's a Precambrian orogeny. ठीक है बच्चे, तो ये जो समय चल रहा है, इस समय आपके विंध्यन, महादेव हिल, सतपुड़ा, ईस्टर्न घाट इत्यादि पर्वतों का निर्माण होता है। स्कॉटलैंड हाईलैंड बनता है बच्चे, स्कॉटलैंड हाईलैंड, है ना, स्कॉटलैंड हाईलैंड, एंड सो मेनी माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड वर क्रिएटेड एट दिस टाइम। सो माउंटेन बिल्डिंग में देखेंगे। So not only Appalachian, during this time there were other things were formed. The end of the Paleozoic, largest mass extinction in history, wiped out approximately 90% of all marine animal and species and 70% of land animal. This is the largest mass extinction at the end of Paleozoic. So try to see in the short, you will find there is a mass extinction, largest mass extinction you will find over here, and this is what? Permian mass extinction. This is the largest mass extinction. Almost 90% of oceanic and 70% of terrestrial life was perished. और इसी समय बहुत सारा बरियल हुआ है बच्चे, कार्बोनिफेरस, और हम लोगों को ढेर सारे कोल डिपॉजिट, भारत में भी कोल डिपॉजिट आपको मिलेंगे, है ना। तो दिस इज व्हाट द मैसिव मास एक्सटिंक्शन ऑफ द वर्ल्ड, याद रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सो possible cause of mass extinction event: lowering of sea level when the continent were rejoined as Pangea, convergent plate boundary, increased volcanic activity, ash and dust. These were the consequences, means these were the reason of mass extinction कि पेंजिया बनने से सी लेवल नीचे चला गया और उसके कारण मास एक्सटिंक्शन हुआ। और दूसरा बताया गया कि इस समय वॉल्केनिक इरप्शंस बहुत हुए थे, उससे वॉल्केनिक डस्ट, ग्लोबल कूलिंग के कारण मास एक्सटिंक्शन हुआ। ठीक है बच्चे, क्लाइमेट चेंज, अब कूलर क्लाइमेट हुआ होगा क्योंकि जब वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं बच्चे, तो मैं वॉल्केनिज्म में जीएस में भी ये बात पढ़ाता हूँ कि when there is a volcanic eruption, your volcanic dust spread into stratosphere. वॉल्केनिक डस्ट जो होते हैं वो स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच जाते हैं और स्ट्रेटोस्फीयर में जाकर के ये ओपेक लेयर क्रिएट कर देते हैं जो कि सोलर रेडिएशन को ब्लॉक कर देती है। इट ब्लॉक्स द सोलर रेडिएशन, इट ब्लॉक्स द सोलर रेडिएशन। तो सोलर रेडिएशन नीचे कम आ पाएगा तो ऑब्वियसली देयर विल बी कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट। और कूलिंग इफेक्ट होने से, जब की बात है बच्चे, उस समय ज्यादातर कोल्ड ब्लडेड एनिमल थे। कोल्ड ब्लडेड एनिमल, दे आर नॉट एबल टू चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द आउटसाइड, सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल, एंड दैट्स व्हाई देयर वाज अ मास एक्सटिंक्शन, मास एक्सटिंक्शन। सो खूब सारा वॉल्केनिक इरप्शन और क्लाइमेट चेंज, कूलिंग इफेक्ट हुआ था वॉल्केनिक इरप्शन से। और क्या हुआ था बच्चे, और हुआ था सी लेवल नीचे जाना। सी लेवल नीचे जाने का कारण ये था, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। सी लेवल नीचे इसलिए गया था बच्चे, जब पेंजिया बना तो मोस्ट ऑफ द पेंजिया इज एक्चुअली लोकेटेड नियर साउथ। तो साउथ पोल के पास पेंजिया, जब पेंजिया बना, और यहाँ पे ग्लेशिएशन हो जाता है, और टेम्परेट रीजन और पोलर रीजन पे ग्लेशिएशन होता है, और ग्लेशिएशन होने से सी लेवल नीचे चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये मान लीजिए कॉन्टिनेंट है और ये ओशन है,
तो ग्लेसिएशन का मतलब है कि कॉन्टिनेंट पे बर्फ का जमना। ये बर्फ बनी कहाँ से? यहाँ से इवेपोरेशन हुआ और कंडेंसेशन होके जो रेनफॉल हुई वो बर्फ के रूप में जम गई किस पे? कॉन्टिनेंट पे। कॉन्टिनेंट पे बर्फ जम गई। अब कॉन्टिनेंट पे ये पानी जाता है बच्चे, रेनफॉल होता है तो ये पानी वापस आना चाहिए, तब तो सी लेवल मैनेज रहेगा। लेकिन लगातार इवेपोरेशन होता रहे, बारिश होती रहे और वो पानी ग्लेशियर के रूप में जमता रहे, क्योंकि कॉन्टिनेंट पे क्या हो चुका है? ग्लेसिएशन। तो धीरे धीरे सी लेवल नीचे जाने लगता है। नीचे जाते जाते 40 मीटर नीचे चला गया। सो 30 to 40 मीटर ड्रॉप इन सी लेवल। तो ऑब्वियसली जो जानवर इधर रह रहे होंगे वो सी लेवल नीचे जाने के कारण, या मान लो यहाँ कोरल डेवलपमेंट हुआ वो खत्म हुआ, कोरल पे डिपेंडेंट जो स्पीशीज होंगी वो खत्म हो जाएंगी। दैट्स व्हाई देयर वाज अ मैसिव लॉस टू बायोडाइवर्सिटी। तो समझ गए मास एक्सटिंक्शन का कारण? बताओ भाई, मास एक्सटिंक्शन क्यों हुआ? क्योंकि तीन, मतलब दो चीजें हो रही थी प्रोमिनेंटली। एक तो ये पैंजिया बनने से ग्लेसिएशन हो गया, साउथ पोल पे ज्यादातर लैंड मास इकट्ठा हो गया, जिसके कारण ग्लेसिएशन, और उस ग्लेसिएशन का प्रभाव था कि सी लेवल नीचे चला गया। और ऊपर से जो इधर थे उधर बारूद ही बारूद बिछे हुए थे, वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे और कूलिंग इफेक्ट यहाँ भी हुआ, एंड दैट्स व्हाई देयर वाज अ मास एक्सटिंक्शन। इज इट अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन? बताइए भाई। Yes, sir. Yes, sir. सो याद रखेंगे, मास एक्सटिंक्शन जो सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन हुआ है उसका कारण कूलिंग था। और कूलिंग किस तरह से हुआ है ये भी मैंने बता दिया बच्चे। एक कारण है कूलिंग का कि पेंजिया बना, पेंजिया बन के ज्यादातर पेंजिया कहाँ रह गया? साउथ पोल। साउथ पोल। और ज्यादातर पेंजिया पे ग्लेसिएशन हो गया बच्चे, ग्लेसिएशन। ठीक है, जिससे सी लेवल नीचे चला गया, सी लेवल बढ़ गया। सी लेवल क्यों नीचे जाता है वो भी मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ब्लॉक हो गई। इवापोरेशन हो रहा था, रेनफॉल हो रही थी, लेकिन वापस पानी नहीं आ रहा था, तो उसी को कहते हैं सी लेवल गोज डाउन। दूसरा हुआ वॉल्केनिक एरप्शन। वॉल्केनिक एरप्शन से निकले वॉल्केनिक डस्ट, और वॉल्केनिक डस्ट सबसे बदमाश होते हैं। वॉल्केनिक डस्ट दे स्प्रेड इनटू स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में जाके उन्होंने सोलर एनर्जी को रोक लिया, और रोकने से नीचे जब इंसुलेशन कम आएगा तो इट इज बट ऑब्वियस देयर विल बी कूलिंग इफेक्ट। ओके, सो यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज द अर्ली फिश। काफी खतरनाक लग रही है, देख रहे हैं। ठीक है, और ये है आपके अर्ली प्लांट्स। अर्ली प्लांट्स में जो आप देख पा रहे हैं इट इज एक्चुअली फर्न। ओके, so you will find fern, you will find gymnosperm. So these were the early plants, ferns and gymnosperm. Indeed, the bryophytes were there, but bryophytes असल में पानी के आसपास ही हुआ करते थे। सो टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म जो हायर फर्न्स थे, और जो जिम्नोस्पर्म थे वो इनिशियल प्लांट्स बने, जिनको आप अर्ली प्लांट्स के रूप में देखते हैं। आज भी ये जिम्नोस्पर्म आपको दिखते हैं, अगर आपने अपने घर में हो सकता है साइकस लगा रखा हो। साइकस देखा है बच्चे? जिसके कोन होते हैं, इस तरह से कोन उसके होते हैं। So naked seeds are there. So you'll find cycas tree, and this is the plant leaves over there. चारों तरफ ऐसे leaves निकली होती है, और बीच में you'll find cone, and there is a stem-like structure. So this is what you will find cycas. That is ornamental plant right now. So ornamental plant, and you will find this cone, which is studded with naked seeds. Seeds are there. So you'll find the cycas, you'll find pinus. आप हिमालय में चले जाएंगे आपको pinus भी मिलेगा। So these are the early plants. ठीक है बच्चे? So ये रहे early plants और early animal. Mesozoic का मतलब होता है medial phase, or you can say middle life phase. Mesozoic era. At the beginning of the era, the continent were joined as Pangaea. Pangaea broke up around the middle of this era. 300 मिलियन साल पहले की कहानी, जब पेंजिया एक साथ हुआ करता था और पेंजिया में टूट फूट शुरू हो गई थी। 300 से 250 मिलियन के बीच में ये स्थिति थी बच्चे। रेप्टाइल बिकम द मोस्ट एबंडेंट एनिमल बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू अडेप्ट टू द ड्रायर क्लाइमेट ऑफ द मेसोजोइक एरा।
अब रेप्टाइल्स क्या करते थे बच्चे? रेप्टाइल्स एम्फीबियन से रेप्टाइल्स बने। एम्फीबियन वे थे जो लाइफ के लिए पानी में भी रह सकते थे, जैसे मेढक आज की डेट में उसको पानी भी चाहिए और जमीन पे भी रह लेता है, एम्फीबियन। ओके, सो एम्फीबियन से रेप्टाइल्स बने। अब रेप्टाइल्स दे आर एडेप्टेड फॉर द टेरेस्ट्रियल क्लाइमेट, तो सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करना शुरू किए एनिमल बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू अडेप्ट टू द ड्रायर क्लाइमेट ऑफ द मेसोजोइक एरा। स्किन मेंटेन बॉडी फ्लूइड, एम्ब्रियोज लिव इन द शेल्स, अंडे दे रहे थे। सो दे रेप्टाइल्स आर व्हाट? ओविपेरस, वो अंडे देते हैं बच्चे को। ओके, अब यहाँ रेप्टाइल्स में जो हायर रेप्टाइल्स थे, इवॉल्व रेप्टाइल, उसी में आ जाते हैं डायनासोर। सो डायनासोर्स है ना, पहले आता था डायनासोर जब हम लोग छोटे थे, तो एट दैट वेरी टाइम दिस वाज अ सीरियल ऑन संडे. So dinosaur were also very active in this era. The first small dinosaur appeared in Triassic. Larger and more abundant dinosaur appeared in Jurassic. So Jura Mountain से इनके जो है, Jura Mountain से इनके जो है अवशेष मिले, fossils मिले. That's why the period was named as Jurassic. Okay. Small mammal and birds also appeared during this era. छोटे छोटे बर्ड्स और मैमल भी अब अपीयर होना शुरू हो गए थे. मैमल वेर स्मॉल बट वार्म ब्लडेड एनिमल, हेयर कवरिंग देयर बॉडीज. दीज कैरेक्टरिस्टिक हेल्प देम सर्वाइव इन चेंजिंग एनवायरनमेंट. मैमल्स छोटे थे, ये बहुत बड़े बड़े थे. ये बड़े थे तो इतने कॉन्फिडेंट थे कि इन्होंने अपने शेल्टर्स भी नहीं बनाए, ये खुले आकाश के नीचे रहते थे. फिर क्या होता है बच्चे? आता है क्रिटेशियस, और क्रिटेशियस में होता है एक बहुत बड़ा मीटियोराइटिक फॉल. meteoritic fall in Arizona at the time of Cretaceous. और इनकी बैंड बच जाती है. बैंड इसलिए बचती है क्योंकि एक तो ये कोल्ड ब्लडेड है, बड़ी बड़ी साइज के हैं, तो जब उल्कापात होता है, मीटियोराइटिक इवेंट होता है, तो इनके शरीर पे गरम गरम वॉल्केनिक बॉम्ब्स गिरते हैं. बेचारे भाग के कहीं छिप भी नहीं पाते. इन्हीं के मौसी ये पानी में घुस जाती हैं. छिपकली आज भी जीवित है बच्चे. एलिगेटर्स वो पानी के अंदर भाग गए तो वो वहां बच जाते हैं, लेकिन ये बेचारे बाहर ही रह जाते हैं. ये पानी में भी जाते थे तो इतना पानी, बाकी पूरा शरीर बाहर, तो ऊपर से गिरे वॉल्केनिक बम, तो बेचारे जल के मरे. कुछ तो जल के मरे. कुछ गनीमत थी कि चलो ठीक है, लेकिन ऊपर से इंसुलेशन आना बंद हुआ, तो बाद में कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग हुई, तो इन्होंने अपने नाप की रजाई वजाई कुछ बनाई नहीं थी. सो दे वर डिस्ट्रॉयड मैसिवली. सो अनदर मास एक्सटिंक्शन यू विल फाइंड इन दिस पीरियड. तो आप देखोगे जुरासिक के बाद क्रिटेशियस जब आता है तो ये सारे मारे जाते हैं. ठीक है, वही बच पाता है जो कि अपने को अडेप्ट कर ले. कौन अडेप्ट कर पाता है? देखो, mammals were small, they are warm blooded animal, hair covering their bodies. These characteristics help them survive in changing environment, swiftly changing environment. तो warm blooded थे, बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से अपने शरीर के टेम्परेचर को वो मतलब बदल लेते थे. समझ गए? सो दे गेट अडेप्टेड. और छोटे थे तो उनको इतना घमंड भी नहीं था कि हमें कौन मार सकता है, तो अपने शेल्टर होम, बचने बचने का जुगाड़, कोई बरोइंग एनिमल था, कोई पानी में भाग गया, कोई घोंसला बना लिया, कोई उड़ के भाग गया, समथिंग लाइक दैट. दे हैव शेल्टर ना, दे कैन सेव देमसेल्फ अंडर सर्टेन शेल्टर. सो दे सर्वाइव. They are warm blooded also, that's why in case of cooling they survive. Okay. The main plant life of time were gymnosperm, are plant that produce seed but no flower. Yeah, you can say gymnosperm. Gymno means seed. Oh, sorry, gymno means naked, and seed. Sperm means seed. So naked seed, their seed is not coated. Okay. So they are called as gymnosperm. और एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? आपने चना देखा है, चाहे कोई भी सीड देखिए, आप उसके ऊपर एक सीड कोट पाते हो ना, सीड कोट. सीड्स आर नॉट नेकेड, तो उनको आप कहते हैं एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म्स आर द मोस्ट एडवांस प्लांट, जो कि इस समय नहीं थे. इस समय जिम्नोस्पर्म प्लांट्स थे, जैसे पाइन ट्री है, साइकस है,
आरूकेरिया है, एक्समस ट्री है जिसको आप क्रिसमस मनाते हैं, and n number of gymnosperms are there. Once you are in हिमालय में आप जाओ, आपको एक स्पेशल टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलता है अपर हिमालय में, जिसको आप कोनीफेरस फॉरेस्ट कहते हो। क्या कहते हो बच्चे? कोनीफेरस फॉरेस्ट, कोनीफेरस फॉरेस्ट। इनके जो वृक्ष होते हैं वैसे कोन शेप होते हैं, है ना। ज्यादातर जो कोनीफेरस फॉरेस्ट हैं वो जिम्नोस्पर्म होते हैं। सो मेनी ट्रीज ऑफ कोनीफेरस फॉरेस्ट बिलोंग्स टू दिस एरा। फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म, जिनको फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं, ड्यूरिंग द एंड ऑफ दिस एरा, इस एरा के अंत तक इवॉल्व होना शुरू होते हैं। दिस एरा एंडेड अप विद मास एक्सटिंक्शन इवेंट अबाउट 65 मिलियन ईयर्स अगो। ये वही समय है, वही दिन है जिस दिन वो गिरा था बच्चे। And many group of animal, including dinosaur, disappeared suddenly at this time. Many scientists believe that this event was caused by comet or asteroid colliding with the Earth. Not comet, it is asteroid. No? Comet, asteroid. It was asteroid. Okay, it was asteroid. फिर आता है बच्चे मेसोजोइक एरा का मास एक्सटिंक्शन इवेंट, जिसकी चर्चा हो चुकी है। एस्टेरॉइड कॉमेट कोलाइडेड, सो keep it comet, sorry, keep it asteroid, not comet. फिर उल्टा कर दिया मैंने, it's not asteroid, it's comet, sorry, it's asteroid, it's not comet। ये asteroid था, comet नहीं था। Huge cloud of smoke and dust fill the air, block out sunlight, plants die, animal that eat plant die, animal that eat plant, eaters die. So there is a chain reaction. Apart from it, there was a cooling effect, है ना, जो इसमें नहीं लिखा वो मैं बता दे रहा हूँ। कूलिंग इफेक्ट, एंड ड्यू टू कूलिंग इफेक्ट देयर वाज ग्लेशिएशन, एंड ड्यू टू दैट देयर वेर cold-blooded animal, they are not able to control their body temperature, that's why they die. However, not all form of life died during this event. Many animals that you see today are descendant from the survivor of this extinction event, जिसमें मैमल भी थे, रेप्टाइल्स भी बचे, जैसे लिजर्ड्स आज भी हैं बच्चे, क्योंकि लिजर्ड्स को पता था हम छोटे हैं भाई, हमको कोई शेल्टर वेल्टर मिल जाए तो ये शेल्टर में चले गए, इसलिए बच गए। क्रोकोडाइल, ये उसी समय के हैं बच्चे क्रोकोडाइल, बट दे एंटर्ड इन वाटर, भाग गए पानी के अंदर, घुस गए, तो पानी के अंदर इन्होंने टेम्परेचर को भी मैच कर दिया। हाँ, टर्टल्स एंड कॉकरोचेस ये तो रहेंगे ही, है ना। इंसेक्ट तो आपके इनवर्टिब्रेट्स हैं, उनमें एडेप्टेशन कहीं ज्यादा पाया जाता है हम वर्टिब्रेट्स की अपेक्षा, ठीक है। तो ये सर्वाइव कर गए। एंड द मैमल, इनिशियल मैमल्स, बर्ड्स, दे सर्वाइव। ओके, मैमल्स एंड बर्ड्स, दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल। फिर आता है सिनोजोइक एरा, जिसको रिसेंट लाइफ कहते हैं, जो 65 मिलियन साल के बाद से शुरू होता है। Continues today. Climate was warm and mild. Marine animals such as whale and dolphins evolved. Whales and dolphins. Okay, mammal began to increase and evolve. Mammal पहले evolve हो चुके थे, लेकिन बाद में ये और भी बढ़े और भी लाइफ फॉर्म्स में ये चलते चले गए। Allowed them to live many different environment. They are on land, air as well as sea. The most evolved, what you can say, group of animal. Grasses increase and provide food source for grazing animal. Many mountain range formed during Cenozoic era. अब इसी में टर्शियरी माउंटेन्स जो बने हैं बच्चे, जिसमें अल्पाइन माउंटेन में हिमालय, रॉकी, एंडीज, आल्प्स, कार्पेथियन, ये सारे नाम आपको आते हैं। जैग्रोस, सुलेमान, किरथार, इन सब के नाम आपको आते हैं जो कि इस एरा में बने। The growth of these mountains may have helped to cool down the climate. Growth of these mountains may have helped to cool down the climate. Ice age occurred late in Cenozoic, जिसको क्वार्टरनरी पीरियड आइस एज कहते हैं, जो सबसे मतलब लास्ट आइस एज यही है, क्वार्टरनरी आइस एज। And as the climate changed, an animal had to adapt to the rise and fall of the ocean caused by melting of glacier and ice age. And this era is sometimes called as age of mammals and age of angiosperm.
Angiosperm. Okay, marine animal examples. You have the examples. Algae, mollusk, fish, mammal. Algae पहले से ही थे बच्चे. They are ancestors. Mollusk, you can go. Fish already थे. Mammals बाद में हुए हैं. Land animal example, and these are the feline and canine family. और हम ह्यूमन बीइंग भी हुए हैं. एल्गी को यहाँ मत लिखिएगा. एल्गी इज ऑलरेडी इवॉल्व. साइनोबैक्टीरिया से जब इवोल्यूशन होता है ना, साइनोबैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया से अगला इवोल्यूशन एल्गी का ही होता है. साइनोबैक्टीरिया से बनते हैं एल्गी, और एल्गी से बनते हैं ब्रायोफाइट. और ब्रायोफाइट कब बन जाते हैं आपको पता है. एम्फीबियंस हैं बच्चे ना. सो दे वेर वेरी इनिशियल. तो एल्गी इज व्हाट. यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग नोट्स वो मरीन के कारण लिख दिया है इसने. एल्गी बहुत पहले हो चुके थे. बहुत पहले का मतलब जब साइनोबैक्टीरिया से इवोल्यूशन आगे बढ़ा तो पहला इवोल्यूशन एल्गी ही हुआ. ठीक है. सो वे बैक व्हेन द फर्स्ट लाइफ वाज फॉर्म, साइनोबैक्टीरिया पहली लाइफ से लगभग 1 बिलियन साल बाद बनते हैं. 2.6 बिलियन ईयर एगो साइनोबैक्टीरिया वेर इवॉल्व. एंड फ्रॉम साइनोबैक्टीरिया देयर वाज एल्गी. तो एल्गी बहुत पहले बन चुके थे, याद रखिएगा. ठीक है. सो flowering plant were now the most common plant on life, and this is what the timetable. You just go through the timetable, and this is how we have covered the geological time scale. Is it okay to everyone? Yes, sir. हाँ, बताइए. Yes, sir. So geological time scale is over. इसको ध्यान में रखिएगा. इवोल्यूशन कब क्या हुआ है. चलिए आइए इसके आगे की कहानी. और इसके आगे की कहानी हमें पढ़नी है अर्थ्स इंटीरियर. अर्थ्स इंटीरियर. तो अर्थ्स इंटीरियर. और अर्थ के इंटीरियर को जानने के लिए देयर आर मिनी सोर्सेस. वैसे मेरे पास नोट्स भी हैं. पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ इसका भी. लेकिन इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको सिखाने पड़ेंगे. बट ठीक है, फॉर द टाइम बी let me show you some basic understanding, then we will go for board writing. So there is interior of the earth. I'm just giving you the interior of earth, the nutshell. And then we will cover it in detail. Okay. So there are different, what you can say, sources of knowing the earth interior, because you know earth is ये मैंने शेयर किया है. बोर्ड मिल रहा है क्या. यस सर. अर्थ का इंटीरियर का मिला बोर्ड. Yes, हाँ sir. सर. ओके. पानी लेके नहीं गया. अच्छा, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं पानी लेके आ जाऊँ.
So we are discussing about interior of Earth. I'm just giving you the nutshell. So first, let's have the understanding of outline of interior of Earth and the sources, and then I will elaborate the seismic wave and all. So sources, to study the interior of Earth, there are some direct source. डायरेक्ट का मतलब ये होता है बच्चे कि जिसको आप छू सकें, जिसको आप केमिकली फिजिकली एनालाइज कर सकें, देख सकें. सो दीज आर द डायरेक्ट सोर्स एंड डायरेक्ट सोर्सेज आर वेरी लिमिटेड. डायरेक्ट सोर्सेज में नाम आता है डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट का. डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, या एक और नाम इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट. इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट. ओके, दैट इज व्हाट अप टू 12 किलोमीटर, जहां तक हम लोगों ने क्या किया बच्चे, गहराई तक खुदाई की है. कोला रीजन, कोला पेनिनसुला के पास है, आर्कटिक रशिया. आर्कटिक रशिया ये सबसे गहरी माइनिंग है जहां तक हम ह्यूमन बींग पहुंच पाएंगे, और इसके आगे खुदाई नहीं हो पाई. कोला सुपर डीप बोरहोल, यस, कोला सुपर डीप बोरहोल. अनदर नेम इज व्हाट, कोला सुपर डीप. ये सब नामकरण है, न्यूज़पेपर वाले छापते रहते हैं. एक्चुअली इट इज इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, और डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट. कोला पेनिनसुला, देयर इज अ कोला पेनिनसुला, और कोला पेनिनसुला आप देखोगे आर्कटिक रीजन में, उसी के कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे ये ड्रिलिंग हो रही है, जिसको सुपर होल भी कहते हैं. सुपर होल इसलिए कहते हैं, इट इज द डीपेस्ट पॉसिबल होल विच ह्यूमन बीइंग हैव रीच्ड. अच्छा, अब आप सोचें जरा कि अर्थ की जो रेडियस है, एवरेज रेडियस, वी टेक इट अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर. सो अगर इसको हम डेप्थ माने तो 6400 किलोमीटर का 12 किलोमीटर क्या ही है. इट्स अ फ्रैक्शन. जहां तक हम डायरेक्ट पहुंच सके, जहां के मटेरियल्स को हम छू सकते हैं, उसकी डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं, उसके केमिकल कंपोजिशन को देख सकते हैं. केमिकल कंपोजिशन वी कैन मेजर, ओके, एंड वी कैन मेजर द डेंसिटी, एंड वी कैन मेजर द टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, है ना, इनको मेजर कर पाए. लेकिन जरा ये बताइए कि इतनी बड़ी गहराई 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर की गहराई में अब 12 किलोमीटर की चीजों को देख के क्या ही अंदाजा लगा सकते. दैट्स व्हाई डायरेक्ट सोर्सेज आर वेरी लिमिटेड. अपार्ट फ्रॉम इट देयर आर अदर माइनिंग एक्टिविटी. माइनिंग एक्टिविटी में क्या हुआ बच्चे कि हम कोलार गोल्ड माइन 4 किलोमीटर गहरे चले गए. कोलार, हुती. वी ऑल्सो माइन इन अफ्रीकन कंट्रीज, अफ्रीका में भी माइनिंग 3-4 किलोमीटर गहरी हो गई, है ना. तो हमें बहुत कुछ खास मिला नहीं. ऊपर से एक और डायरेक्ट सोर्स जिसको काफी जोग्राफर डिस्प्यूट भी करते हैं, मतलब दे आर ऑफ नॉट ओपिनियन कि ये डायरेक्ट सोर्स है, वॉल्केनिक एरप्शन को भी मानते हैं. सम ऑफ द जोग्राफर इज ऑफ द ओपिनियन दैट वॉल्केनिक एरप्शन इज अ डायरेक्ट सोर्स. लेकिन whatever the inference we are going to see the magma, yes indeed we can measure the density of magma, we can go for chemical analysis of this magma, we can measure the temperature of this magma, everything we can do, and this is what tangible. But can we estimate that at which height this magma is coming, at which depth it is coming? So what is the depth? डेप्थ. अब डेप्थ का मतलब ये है बच्चे कि एस्थेनोस्फीयर में ये कहां से आ रहा है ना. 400 किलोमीटर का डेप्थ है एस्थेनोस्फीयर का. उससे भी गहरा कहीं ये मेंटल ग्लूम का तो पार्ट नहीं है. कुल मिला के इसकी ओरिजिन के बारे में हम इसके टेंजिबल होने के बावजूद भी पता नहीं पाते. इसलिए इसको कुछ जोग्राफर डायरेक्ट सोर्स मानने से इनकार करते हैं. तो ठीक है भाई, आप मैग्मा का केमिकल कंपोजिशन देख लीजिए,
डेंसिटी देख लीजिए, टेम्परेचर आप नाप सकते हैं, लेकिन क्या मैग्मा बता सकता है कि मैं एग्जैक्टली 200 किलोमीटर गहराई से आ रहा हूँ कि 400 कि 500, या कि मैं मेंटल प्लूम का पार्ट हूँ, मैं लोअर मेंटल या अपर मेंटल कहाँ से आ रहा हूँ, है कि नहीं? सो द डेप्थ इज नॉट नोन। तो जब डेप्थ आप नहीं बता पाओगे तो किस डेप्थ पे चेंज इन डेंसिटी है उसको हम डायरेक्टली कैसे मेजर कर सकते हैं? मान लो कि मैग्मा, देखो इस पे डिस्प्यूट है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ज्यादातर किताबों में इसको डायरेक्ट सोर्स लिख दिया जाता है। मैग्मा लेट से एट 700 किलोमीटर, यहां से भी आ सकता है, मेंटल प्लूम का पार्ट हो सकता है बच्चे, मेंटल प्लूम का पार्ट हो सकता है, बिटवीन 100 to 400 किलोमीटर के बीच में कहीं से भी आ सकता है। तो ये हो सकता है लोअर एस्थेनोस्फेयर का पार्ट हो, मिडिल एस्थेनोस्फेयर, अपर एस्थेनोस्फेयर। ऐसा भी हो सकता है बच्चे क्रस्ट में भी कहीं बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने से रॉक मोल्टेन हो गई, ये भी मैग्मा बन सकता है। सो दिस मैग्मा विल नॉट टेल यू कि आई बिलोंग टू स्ट्रेटा विच इज 30 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस, या 100 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस, या 350 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस। और अपनी डेंसिटी तो बताएगा, टेंजिबल है तो डेंसिटी तो मेजर कर लेंगे, लेकिन आप ये सोचेंगे ना कि ये मैग्मा 30 किलोमीटर गहराई से आने वाले की डेंसिटी है कि 700 किलोमीटर। तो दिस इज व्हाट समथिंग विच इज व्हाट इनिग्मेटिक, विच इज नॉट नोन इवन आफ्टर नोइंग द वॉल्केनिक मैग्मा। इसीलिए वॉल्केनिक इरप्शंस को डायरेक्ट सोर्सेज मानने से काफी कुछ ज्योग्राफर इनकार करते हैं, जियोलॉजिस्ट इनकार करते हैं, वो इसे इनडायरेक्ट सोर्स में ही कंसीडर करते हैं। देयर इज वन मोर डिवीजन, सोर्सेज आर नेचुरल आर अननेचुरल। सो नेचुरल सोर्स जिसमें डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट भी आता है, वॉल्केनिक इरप्शन भी आते हैं, मीटियोर्स भी आते हैं, तो ये नेचुरल सोर्स हो गए जो नेचर ने बनाए हैं। और जो आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं उसमें सेस्मिक इवेंट्स, टेम्परेचर चेंज, डेंसिटी चेंज, मीन्स एटसेट्रा, सेस्मिसिटी, ये आपके unnatural source are artificial sources. So sometime you will find there is a dispute in deciding the sources, but most of the geographer consider it that volcanic eruption is what direct, but some of the geographer is of the opinion कि direct source है तो, लेकिन exact अब किस डेप्थ से आ रहा है हम नहीं बता पाते, ठीक ठीक नहीं बता पाते, है ना? आगे चलते हैं। अब सबसे ज्यादा हमें जो प्रमाण मिलते हैं वो सेस्मी सिटी से मिलते हैं, ठीक है? सेस्मी सिटी यानी सीस्मिक वेव, सीस्मिक वेव, और सीस्मिक वेव से हमें जो कुछ मिला उससे उसके आधार पे हम अर्थ के इंटीरियर को डिसाइफर कर पाए। अब वो कौन कौन से कैरेक्टर हैं उसे कल की क्लास में देखेंगे। आज हम एक सरसरी निगाह से देख लेते हैं अर्थ के इंटीरियर में कौन कौन से लेयर हैं जिसका पता हमें सिस्मिक वेव और ऑब्जर्वेशन शैडो जोन के आधार पे पता चलता है। तो अर्थ के इंटीरियर को हम क्रस्ट, मेंटल और कोर के रूप में बांट देते हैं। क्रस्ट सबसे बाहर है बच्चे, मेंटल बीच का, और कोर सबसे अंदर का पार्ट है। कोर बना है निकेल और आयरन के संयोग से, मेंटल बनता है मैग्नीशियम और आयरन के से बना हुआ है, और क्रस्ट बनता है सिलिका, एल्यूमिनियम और सिलिका मैग्नीशियम के कॉम्बिनेशन से। सो दिस इज हाउ द फॉर्मेशन हैज बीन डन। सो क्रस्ट की बात अगर करें तो क्रस्ट को दो भागों में हम बांट सकते हैं। ये है आपका आउटर क्रस्ट और ये रहा आपका इनर। ओके, दिस इज आउटर क्रस्ट, ये हो गया आउटर क्रस्ट, आउटर क्रस्ट, और ये हो गया आउटर क्रस्ट, या दिस इज अपर क्रस्ट, अपर क्रस्ट भी कहते हैं, दिस इज लोअर क्रस्ट, है ना, लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट बना है सिलिका एल्यूमिनियम से, और लोअर क्रस्ट बना है सिलिका मैग्नीशियम से। तो जाहिर सी बात है सिलिका और मैग्नीशियम है तो लोअर क्रस्ट की डेंसिटी ज्यादा होती है, 3 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर, और अपर क्रस्ट की डेंसिटी होती है 2.7 ग्राम पर सीसी। ठीक है बच्चे? सो अब देखें जरा, अब इस क्रस्ट को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक है ओशनिक और दूसरा है कॉन्टिनेंटल।
ओशनिक क्रस्ट बहुत कम पतला होता है, चौड़ा होता है, मतलब थिकनेस उसकी कम होती है 5 से 8 किलोमीटर तक की। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एवरेज 30 से 35 किलोमीटर चौड़ा होता है। किताब किताब में वेरिएशंस आपको मिलेंगे, इवन नोट्स में भी आपको दिखेंगे। ओशनिक क्रस्ट की डेंसिटी ज्यादा होती है, मोर डेंसर, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी कम, लेस डेंसर। उसका कारण ये होता है बच्चे, मोर डेंसर होने का कारण क्योंकि इसका ज्यादातर निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। सो मोस्ट ऑफ द ओशनिक क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सीमा। तो आप देखें ये पार्ट अगर हम ओशन कंसीडर करें और इसे कॉन्टिनेंट, तो आप देखें ओशनिक क्रस्ट कम चौड़ा है, लेकिन उसमें लोअर क्रस्ट ज्यादा है, इसलिए उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अधिक चौड़ा है, लेकिन उसमें लोअर क्रस्ट कम चौड़ा है। आप देख पा रहे हैं उसका निर्माण ज्यादातर किससे हुआ है बच्चे, सिलिका एल्यूमिनियम से, इसलिए उसकी डेंसिटी कम होती है। इट इज मेड अप ऑफ सिलिका एल्यूमिनियम। तो याद रखिएगा। अब देखते हैं इसमें थिकनेस नॉर्मली बिटवीन 30 to 50 किलोमीटर, इट वेरीज। हाँ, समटाइम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इवन लार्जर देन, ग्रेटर देन 100 किलोमीटर। तो कहीं कहीं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 100 किलोमीटर तक चौड़ा है। अच्छा, ये वहां मिलता है जहाँ पे फोल्डेड माउंटेन होते हैं, फोल्डेड माउंटेन, है ना बच्चे। फोल्डेड माउंटेन जहाँ होते हैं वहां पे आपको क्रस्ट की चौड़ाई ज्यादा मिलती है। अब थिकनेस के आधार पे ये सारी बातें जो अभी मैं बोला आपको यहाँ पे लिखी हुई मिलेंगी। थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरी अंडर द ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल एरिया। ओशनिक क्रस्ट इज थिनर, 5 to 30 kilometer thick. Indeed, on an average, it is 5 to 8 kilometer. Fine. While compared to the continental crust, which is 50 to 70 kilometer thick, and normally it is 30 to 35 kilometer. But yes, it ranges up to 70 kilometer and sometimes more than that. Continental crust is thicker in the area. Major mountain system are there. Major mountain system जैसे हिमालय, हिमालय के नीचे क्रस्ट की मोटाई 70 किलोमीटर से ज्यादा, एंडीज के नीचे 100 किलोमीटर के आसपास है। सो इट इज एज मच ऑफ 70 to 100 किलोमीटर थिक इन हिमालयन रीजन, फ्रॉम 0.5 to 1% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम। अर्थ वॉल्यूम का 1% तो नहीं बच्चे, क्रस्ट इज कंट्रीब्यूटिंग 0.5% ऑफ अर्थ वॉल्यूम, अर्थ वॉल्यूम, और लेस देन 0.5%। 1% तो मत करिएगा बच्चे, लेस देन 0.5% of earth volume contributed by earth crust. The outer covering of the crust is sedimentary material, outer covering. It's not granite rock, please correct it. So outer covering of the crust is of sedimentary, it's not sedimentary. Outer surface of earth crust is sedimentary. It is granite is right, ये sedimentary की जगह इसको आप क्या लिखेंगे, तो करेक्ट कर लीजिए बच्चे, ये गलत है। इट्स नॉट सेडिमेंट्री, इट्स इग्नियस। आउटर कवरिंग 90% लिख दे रहा हूं, 90% ऑफ द अर्थ क्रस्ट, इसको नोट कर लीजिए, इसे काट के, सेडिमेंट्री नहीं है, दिस इज रॉन्ग, टाइप ऑफ मिस्टेक है बच्चे। 90% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ igneous rock, igneous rock, अग्नेय चट्टानों से बना है 90% अर्थ क्रस्ट। और 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस is covered by sedimentary. 2/3 of earth surface is covered by sedimentary rock. दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों को समझ लीजिएगा। अर्थ क्रस्ट का मतलब हो गया, so what is the meaning of earth crust? Crust means this is the earth crust, यानी इसकी पूरी थिकनेस, लेट से 70 किलोमीटर थिक है अर्थ क्रस्ट। तो इसके निर्माण में 90% क्या लगे हुए हैं, 90% इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक। लेकिन अर्थ क्रस्ट, ये क्रस्ट हो गया बच्चे। अब अर्थ सरफेस का मतलब क्या हुआ, अपर पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। सो देयर इज अपर पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, सो अपर पार्ट उसको आप अर्थ सरफेस कहते हैं। अब अर्थ सरफेस पे कौन सी चट्टानें पाई जा रही हैं,
वो चट्टाने हैं सेडिमेंट्री। सो मेजर अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री याद रखिएगा, सेडिमेंट्री रॉक। यानी पूरा अर्थ क्रस्ट बना किससे है? इग्नियस रॉक, जिसमें ग्रेनाइट का उदाहरण वहां लिखा हुआ था। सो यस, ग्रेनाइट इज देयर, गैब्रो इज देयर, बट सेडिमेंट्री रॉक इज कवर द अर्थ सरफेस। सो जरा फिर से पढ़ते हैं। उनका कहना है द आउटर कवरिंग ऑफ क्रस्ट इज ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। आउटर कवरिंग अगर कह रहा है तो सेडिमेंट्री रॉक, यानी जो सरफेस है वो सेडिमेंट्री रॉक का है, लेकिन वो ग्रेनाइट नहीं होगा, तो इस ग्रेनाइट को काट दीजिए, प्लीज करेक्ट इट। So if sedimentary rock, granite will not be there. Granite is igneous rock. Typo mistake हुआ है यहाँ पे. Granite is igneous rock, and below that lie crystalline, igneous and metamorphic rock which are acidic in nature. और यहाँ पे आपका granite होना चाहिए था, है ना? This is what granite, which is what making the crystalline igneous rock. That is granite. So surface is made up of sedimentary rock, जैसे आपको बताया मैंने. Most of the earth crust is made up of igneous rock. Lower layer of earth crust is of basaltic or ultra basic rock. Lower layer जिसको आप सीमा कहते हैं, बेसिक है बच्चे, सिलिका और मैग्नीशियम ज्यादा है, सीमा. So lower layer, lower crust is made up of basic. The average density of the outer and lower crust is 2.8 and lower crust is 3.0. 2.7 मैंने बताया है, 2.7, 2.8 चलता है इतना, and 3 respectively. The continent are composed of lighter silica plus aluminium, also called as Sial, while the ocean have heavier silica plus magnesium, also called as Sima. Sima के कारण ही इसकी डेंसिटी 3 ग्राम पर सीसी. समझ गए? Mohorvisic or Moho discontinuity form the boundary between lower crust and upper mantle. लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में मोहरविसिक डिसकंटिन्यूटी. एक और डिसकंटिन्यूटी है बच्चे जो क्रस्ट के बीच में है, मैं यही बता देता हूं. देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी बिटवीन अपर क्रस्ट एंड द लोअर क्रस्ट. दिस इज अपर क्रस्ट, हियर इट इज लोअर क्रस्ट. ये मान लो ओशनिक है, ये कॉन्टिनेंट है. सो अपर क्रस्ट एंड दिस इज लोअर क्रस्ट. ये इस पार्ट को आप ओशनिक कह सकते हो, ओशनिक, और ये वाला कॉन्टिनेंट. And there is a discontinuity between upper crust and lower crust, and this discontinuity is called as Conrad discontinuity. So there is a discontinuity between upper crust and lower crust, which is called as Conrad discontinuity. यहाँ पे आपको डिसकंटिन्यूटी मिलेगी Conrad discontinuity. और इसके ठीक नीचे होता है मेंटल, और मेंटल और क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है, जिसका उदाहरण वहां आपको देख पा रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट मोहोर्विसिक discontinuity. So you will find this discontinuity over here, Moho discontinuity and the Mohorvisic discontinuity. Moho discontinuity versus Moho discontinuity. Mohorvisic discontinuity, that is in upper crust and lower crust. Is it okay to everyone? Upper crust and lower crust. Mohorvisic discontinuity. अब आते हैं बच्चे मेंटल. मेंटल किसके बने हैं? अपर मेंटल, लोअर मेंटल. 2900 किलोमीटर क्रस्ट के ठीक नीचे 2900 किलोमीटर की गहराई तक आपको मेंटल मिलता है. 2900 किलोमीटर के बाद कोर शुरू हो जाता है बच्चे, और मेंटल को भी लोअर मेंटल और अपर मेंटल के रूप में हम बांट सकते हैं. सो क्रस्ट के नीचे मेंटल बना होता है बच्चे ज्यादातर MgFe, मैग्नीशियम और आयरन से, इसीलिए इसकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है. ये डेंसिटी 3.5 ग्राम पर सीसी से लेकर के अपर मेंटल से लोअर मेंटल तक आते आते 5.5 ग्राम पर सीसी तक हो जाती है. ठीक है, तो चलिए आइए पढ़ते हैं. द पोर्शन ऑफ इंटीरियर बियॉन्ड क्रस्ट इज कॉल्ड एज मेंटल. Mental extend from Moho discontinuity
to a depth of 2900 kilometer. The upper portion of mantle is called as asthenosphere. यहीं पे asthenosphere होता है बच्चे. So this layer just below the crust is called as asthenosphere. और crust से mantle का भी एक part जुड़ा होता है जिसको मिला करके lithosphere कहते हैं. So crust plus upper part of upper mantle is called as lithosphere, जो कि asthenosphere पे float करता है. तो लिथोस्फीयर का नीचे का भाग और एस्थेनोस्फीयर किसका भाग है बच्चे? अपर मेंटल का. अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड एज एस्थेनोस्फीयर. द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल आर कॉल्ड लिथोस्फीयर. तो मैंने आपको बताया थिकनेस रेंजिंग फ्रॉम 100 टू 200 किलोमीटर. 200 तो थोड़ा ज्यादा है, 10 to 100 किलोमीटर होना चाहिए था. 10 to 100 किलोमीटर. द लोअर मेंटल extend beyond the asthenosphere. It is solid state. The density of mantle is higher than the crust. Here, okay. 83% of total volume of the earth is what? Mantle, and it accounts for 68% total mass of the earth. So 68% mass of the earth and 83% of the volume is what? Given by mantle. मेंटल का ही पार्ट है एस्थेनोस्फीयर, जो कि 400 किलोमीटर तक एक्सटेंड रहता है. लिथोस्फीयर जिस पे फ्लोट करता है. सो लिथोस्फीयर इज फ्लोटिंग ओवर एस्थेनोस्फीयर which is the upper part of upper mantle. It's a layer, it's a plastic layer upon which the lithosphere floats. ठीक है बच्चे. तो यहाँ देखें, upper portion of the mantle is called asthenosphere. It considered to be extending up to 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर की गहराई तक asthenosphere होता है. It is the main source of magma. Magma ज्यादातर यहीं बनते हैं. Find its way to surface during volcanic eruption and it is density higher than the crust. तो 3.5 ग्राम पर cc की डेंसिटी हो जाती है. और यहाँ टेम्परेचर भी 900 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड का हो जाता है. ओके, कुछ और बातें एस्थेनोस्फीयर के बारे में. टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 900 टू 1200 डिग्री सेंटीग्रेड. यहाँ पे प्लेट्स क्या होती हैं बच्चे? सबडक्ट होके नीचे पहुंचती हैं. ओशनिक प्लेट खास करके प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ाऊंगा. और जैसे ही ये प्लेट्स नीचे पहुंचती हैं, ये सारी प्लेट जो लिथोस्फेरिक प्लेट हैं इसी एस्थेनोस्फीयर पे फ्लोट कर रही होती हैं बच्चे. टेक्टोनिक मूवमेंट्स हो रहे होते हैं. And when they reaching into the area which is having 1000 degree centigrade temperature, that is called as Benioff zone. Benioff zone, जहाँ पे ये प्लेट इस टेम्परेचर पे मेल्ट होकर मैग्मा बनाती है. That's why source of magma क्या है? ज्यादातर मैग्मा एस्थेनोस्फीयर में बनता है. और ये मैग्मा क्रस्ट को तोड़ के बाहर आ जाता है, वॉल्केनिक इरप्शन कराता है. समंदर के क्रस्ट को तोड़ के बाहर आता है तो वॉल्केनिक आइलैंड बनाता है. So you will find so many volcanic eruptions at such plate margin जहाँ पे मैग्मा बन रहा हो. और इसी प्लेट मार्जिन को आप प्लेट टेक्टोनिक्स में कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहते हैं. कन्वर्जेंट और डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री तो पढ़ेंगे अभी. फिलहाल के लिए एस्थेनोस्फीयर, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री. एस्थेनोस्फीयर को ही पावर हाउस ऑफ अर्थ कहा जाता है. दिस इज कॉल्ड एज Earth's powerhouse. Earth's powerhouse. Powerhouse, in the sense, it is the source of endogenic forces. Endogenic forces. Endogenic forces जिससे टेक्टोनिक मूवमेंट होता है. टेक्टोनिक मूवमेंट. So tectonic movement in lithospheric plate is because of endogenic force, and endogenic force or convectional currents are being produced in asthenosphere. And do remember, it's a plastic layer. It's a plastic layer, and when lithosphere floats upon it, it gets deformed and allow lithosphere to float. Okay, so do remember, this is what asthenosphere. Asthenosphere के बाद नीचे 2900 किलोमीटर के बाद, so beyond 2900 kilometer, we have core. Sorry, we have core, and we can divide it into two parts. That is inner core and outer.
So from 2900 kilometer to 5150 kilometer, this is outer core, and beyond 5150 kilometer to the center of the earth, there is inner core. And it is made up of iron and nickel. Nife here. And out of this nife, iron is 96%. So ये बना है आयरन का ही, लेकिन नीफे लेयर बोलते हैं. So 96% is iron, rest is nickel. And outer core, we can divide this outer core and inner core. This outer core is liquid, while inner core is solid in nature. Right? Liquid outer core 4000 degree centigrade temperature के आसपास यहाँ तापमान है, with a density 10 to 11 gram per cc, made up of nife, and the core has a temperature 5300 degree centigrade. Some of the geologists of the opinion की more than 6000 degree centigrade, but ज़्यादातर लोग इस पे मान गए हैं. And there is a density of 12 to 13 gram per cc. So this is the part which is what having highest density, and core accounts for almost 32% of mass of earth, and this you can say weight of the earth, and almost 16% volume of the earth. 16% of volume is of core, 83% of volume is of mantle, and almost 1% or less than 1% accounts for crust. So this is what we consider the volume. But what about mass? So 32% mass of the earth is contributed by core. 32%. This is core. Fine. 68% it is mantle. तो देखो हो गया ना 100%. तो जो क्रस्ट हम देख रहे हैं, जिसपे रह रहे हैं, जिसपे हिमालय इतने बड़े बड़े पर्वत हैं, वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1% भी नहीं है. सो क्रस्ट इट कंट्रीब्यूट लेस देन 1%. Less than 1%. So this is the fraction of the mass which we can see on the earth. This huge earth is. Okay. So this is what we should understand. So the core mantle boundary located at depth of 2900 kilometer. आपको यहाँ discontinuities मिलेंगी बच्चे. आपको core और mantle के बीच में discontinuity मिलती है, उसको कहते हैं आप Gutenberg discontinuity. ठीक है. So you will find Gutenberg discontinuity. Outer core is liquid while inner core is solid in nature. Density of core is higher than the mantle and varies from 5.5 to 13.5 gram per cc. Okay. Core is made up of heavy metal material mostly constituted by nickel and iron. और इसमें भी आयरन क्या है बच्चे? 96% आयरन ही है, बाकी निकल है. और other heavy element. Volume of and mass of core is 16%. 16% is volume and 32% is mass, total volume. So this is what earth layer and seismic discontinuity. Conrad गलत spelling लिखी है. This is Conrad discontinuity. Conrad discontinuity between upper and lower crust. Mohorovicic discontinuity or Moho discontinuity between crust and mantle. Rapidity. There is another spelling mistake. Rapidity discontinuity. Rapidity discontinuity. And rapidity discontinuity between upper and lower mantle. Gutenberg between outer core and inner upper mantle. Inner mantle. So mantle or core के बीच में Gutenberg. Lehman discontinuity between outer core and inner core. This is what the story of the interior of the earth. And here it is the earth chemical composition. खुला है भाई. Chemical composition of the earth, chemical composition. You will find 34% iron, 29% oxygen, the entire earth composition. Let me check once. So yeah.
So in this particular chart, you can see the chemical composition of entire Earth. So once you see the chemical composition of entire Earth, number 1 is iron, followed by oxygen. Then there is silica, magnesium, nickel, sulfur, and titanium. This is the chemical composition of entire Earth. But when we talk about element of the Earth crust, so in the crust we have सबसे ज़्यादा we have oxygen, almost 46.6%. Then लगभग 28% silica, 8% aluminium, followed by iron, calcium, sodium, potassium, magnesium, and others. This is the crustal composition. This is the element which is present in the entire Earth. So these are the basic understanding of the Earth's interior. अब इस इंटीरियर को कैसे समझ पाए, क्या सेस्मिक वेव्स ने बताया हमें, इस सारी चीजों को लेकर के हम लोग कल बातचीत करेंगे. एंड टुमारो विल डिस्कस द सेस्मिक waves and the observation which were helpful in understanding the interior of the Earth. So tomorrow will be the day when we discuss the details of Earth's seismic wave, their characteristic feature, and how we get inside the Earth without going inside. Okay, तो ये चीजें कल पढ़ेंगे. आज बस इतना ही, इसको ध्यान में रखिएगा. I will share the notes as well as video. और बाकी सर हाँ बेटे बताइए. सर मैं अपना आंसर अपलोड नहीं कर पाऊँ जो हाँ, आप आपने सबके आंसर्स आए हैं, तो थोड़ा सा सर समय, तो आई विल गेट बैक ऑन इट. सर मैं अपलोड नहीं कर पाया. आप नहीं कर पाए, जी सर, और ग्रुप में नहीं, टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हो रहा है. भेजने की कोशिश कीजिए. अगर लिख चुके हो तो भेजिएगा. सर लिख चुका हूँ, व्हाट्सएप पे भेज दो आपको. ये आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटे, क्या कह सर रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ आपके व्हाट्सएप नंबर पे क्या भेज दूँ? टेलीग्राम ग्रुप में नहीं भेज टेलीग्राम पाता हूँ. नंबर पे भेजिए. टेलीग्राम पे चेक करना मुझे थोड़ा आसान रहता है. वही व्हाट्सएप का सर नंबर भी टेलीग्राम का है. ठीक है. सर वहाँ पे शो कर रहा है कि अलाउड नहीं है. टेलीग्राम चैनल पे अलाउड नहीं है, टेलीग्राम नंबर हाँ पे अलाउड होगा. जो मेरा टेलीग्राम नंबर है ना, इसी अच्छा, फैबोस टेलीग्राम चैनल ना, तो चैनल पे अलाउड नहीं है. आपके पर्सनल टेलीग्राम हाँ, इसी मैसेज. नंबर से मेरा टेलीग्राम भी होगा, मेरी फोटो होगी, आप उस पर भेज दीजिए. I will check it. ठीक है सर, ठीक ठीक. है सर, ओके सर. थैंक यू. और कोई सवाल आपको पूछना किसी को? चलिए फिर कल मिलते हैं. टुमारो विल बी क्लास. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर.